So in the last lecture we have learned about this SN curve, and here you can see the curve, and this curve is for steel and titanium, which shows some distinct value of fatigue limit, and here some material which don't have any fatigue limit. Okay, an example of this material: aluminum, magnesium and copper. And apart from this we have solved one numerical, so you should solve that numerical. And what was the numerical? Let's see. So this is given that you have a core steel bar, which property the SUT is given 600 Newton per meter square, and this is the revert stress that is applying on the element. Okay, and the endurance limit of the element is given like 101 Newton per meter square, and we have to calculate what is the number of cycles corresponding to this stress, right? So as we know the basic concept, so if you put the 3 here, not 0, then that starting point should be 0.9 times SUT. Okay, and if you are saying the straight line, then we should take the log of this value. Okay, and you know that is this is the endurance limit, so log of that endurance limit. So this is the curve like this, and after that point it will keep on on a straight line. So what is the value of here? This is the 6. This is nothing but log 10 base the number of cycle like this. Okay, so we have given this stress value. Suppose this is the value 250. So first of all take the logarithmic value, and we have to calculate this value. Suppose this value is n. So first of all just calculate the value log that. This value comes out to be like this 540. Write the value log base 10, basically 250. Take the value and write the value log 10 101. So first of all let's calculate this value. This is value 2.73239. Okay, and the value of this 2.3979. Okay, and value of 101 log is 2.004, right? Now see here, suppose this is 0.1, this is 0.2. So just say this axis is, suppose this is y axis, and this axis is x. So we can write by a simple line equation like just y minus y1 divided by y2 minus y1. Here x minus x1 divided by x2 minus x1. So let's put this value. So by putting this value here, let's see what is y. This value. Okay, so put this value 2.3979 minus what is the value of y1. Suppose this is the point first, this value will come, this value will come 2.73239. Okay, and divide by what is y2. This value y2 is this value, this value 2.004 minus 2.73239 is equal to x minus what is the x1. This is the 3. What is the x2? X2, this is the 6 minus 3. So upon solving this, what will we get? 3.
So you will get the value of x is equal to 4.37. Okay. So number of cycle will be 10 raised to power 4.37, so 4.377. So the answer will be 23859 cycles. So this would be the answer. Okay. So this value is very close to the 24. If you are calculating this value, you are not taking this long value, so you will get a different answer, and those answer is also correct. So the problem was that the SUT was given, and SUT is what the ultimate issue. ठीक है, अब इसके बाद क्या देखना है अपने को, जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है that is forming. So before that, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इस न्यूमेरिकल में, तो वो पूछ सकता है अभी भी. Anyone? Any problem the numerical? Sultan Ansari, are you listening? Shweta Sehgal, any Miss Srivastav? Yes, sir. Sir Shweta Sehgal. So, do you have any doubt in the numerical? No, sir. No, sir. If you don't have any doubt, then you should have solved the another numerical, right? Yes, sir. I have solved another numerical problem on WhatsApp, sir, but I don't got the answer. I got the answer 2.5873. ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक. तो हमने जो न्यूमेरिकल दिया था व्हाट्सएप में, ठीक है, तो उसको क्या करना था, उसमें भी कुछ ज़्यादा करना नहीं था. पहले देख लीजिए क्या करना था उसमें. आपको क्या वैल्यू दे के रखा है, पहली बात कि आपने जो SUT दिया हुआ है मटेरियल का, वो है 630 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.
subjected to completely reversed bending stress, right? सो द टर्म कम्प्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस अगर ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको एस एन कर्व जो प्लॉट किया गया था वो भी किसमें किया गया था, कम्प्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस में किया गया था, ठीक है। तो आपका वही इक्वेशन इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो एस यू टी जो होता है वो दिया हुआ है, और आपने क्या दिया हुआ है कि करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट ये कितनी दी हुई है, दिस इज 315 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। और उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द फटीग स्ट्रेंथ फॉर द बार फॉर अ लाइफ ऑफ, अगर आपका लाइफ कितने आ रहा है, कितना है 90,000 है, अगर इतना साइकिल आपका लाइफ है, दिस इज द लाइफ नंबर ऑफ साइकिल, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेस होगा, कितना इसका फटीग स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो सो दिस इज योर क्वेश्चन कि आपको क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ वैल्यू और ये दिया हुआ वैल्यू, ठीक है। और पूछ रहा है कि ये आपने साइकिल दी हुई है, ये आपको गिवन है कि इतना साइकिल लाइफ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितने स्ट्रेंथ है वो निकालना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, पहली बात ये देख लीजिए, पहले आपने क्या लेना है, 0.9 टाइम एनसीटी लेना है, उसका क्या लेना है, लॉग बेस 10 निकाल लो, ठीक है। और ये जब मैं ले लेता हूँ ये वैल्यू, तो इस समय में यहाँ पे वैल्यू कितनी आती थी, ये क्या है आपका जो नंबर ऑफ साइकिल है उसका क्या लिया मैंने, लॉग बेस 10 ले रखा है, राइट। तो मैंने ये रखा है, तो ये एक्सिस ये हो गई, तो यहाँ पे तो 3 हो गया, और जो दूसरी वैल्यू है आपकी जो इंड्योरेंस लिमिट वाली है वो कितनी हुई है, जो भी है आपकी इंड्योरेंस लिमिट ये लिख लो, और इसको भी लॉग बेस 10 निकालो, राइट। यहाँ से ये निकाल लिए, और ये पता है कि जब आप लॉग एक्सिस ले लोगे तो ये जो लाइन आएगी वो आपकी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। तो आपकी ये लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ से वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज 6, राइट। अब आपको क्या दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कितना दिया हुआ है 90,000, तो यहाँ पे कितना लिखूँ मैं, ठीक है। तो क्या करना आपको, लॉग बेस 10 निकाल लो और इसका 90,000 कर लो, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगी, सपोज दिस वैल्यू इज n, तो उसको मैंने n यहाँ रखना है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, लॉग बेस 10 सिग्मा आएगा। तो ये वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है, यहाँ से आपको सिग्मा पता चलेगा, ठीक है। तो आप अपना टाइम लीजिए और अभी सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप बाद में सॉल्व करेंगे नहीं, तो अभी सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। सो दिस इज योर क्वेश्चन। सर इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें आपको स्ट्रेस फाइंड करना है, मतलब फटीग स्ट्रेस, जो सिग्मा की वैल्यू थी ना वो ओके फाइंड सर। करनी है। अभी क्लियर हुआ कि मतलब क्या करना, प्रोसीजर क्या है, या फिर से रिपीट कर दूं एक बार। एक बार ही सर रिपीट कर दीजिए फिर से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बार हम लोग फिर से, आप लोग जितने भी हैं सब ध्यान दें फिर से, और इस बार और आसान भाषा में समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है और करना क्या है। जिन्होंने कर लिया वो काफ़ी अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान दें, ठीक है। पहली बात इसमें आ जाओ, कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, ये देखिए कि आप कोई भी मटेरियल लगाओगे
ठीक है। तो कोई भी मटेरियल होता है, अगर आपने उसमें स्ट्रेस बढ़ा दिया, तो कोई भी मटेरियल में अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो वो कम टाइम तक चलेगा, उसकी मतलब लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, लाइफ मटेरियल की कम हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पहली बात, मतलब स्ट्रेस बढ़ाने से किसी मटेरियल का लाइफ कम हो जाता है। अब ऐसे दो टाइप के मटेरियल होते हैं, ये जो फिनोमिना है वो दो टाइप का हम लोग को दिखता है। पहला क्या होता है, पहला ये होता है, ये ए वाला। ए वाले में क्या हो रहा है, ये देखो, ए वाले में आपका क्या है, मटेरियल ऐसा है कि ये देख लो कुछ समय के बाद देखो, शुरुआत में ये आपका क्या है, ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका स्ट्रेस मतलब सिग्मा, और ये क्या है नंबर ऑफ साइकिल फेलियर, मतलब ये कि कितने स्ट्रेस लगाओगे। मान लो यहाँ पे पर्टिकुलर इतना स्ट्रेस लगाए थे तो वो इतना साइकिल में मटेरियल फेल हो गया, मतलब टूट गया। अगर सपोज आपने स्ट्रेस की वैल्यू कम लगाई थी, यहाँ पे लगाई थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा समय तक टिकेगा मटेरियल और तब जाके टूटेगा, और आपने और कम लगाया तो और लंबे समय तक टिक गया। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लो आपने यहाँ पे लगा दिया स्ट्रेस, ये वाला वैल्यू, तो ये वाले में तो आपका मटेरियल टूट ही नहीं रहा है, बहुत लंबे समय तक चला गया। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के नीचे वैल्यू लगाने पर, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस, ये वाला स्ट्रेस जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के अगर मैं नीचे कोई भी स्ट्रेस लगाता हूँ तो उस समय में वो मटेरियल इनफिनाइट लाइफ साइकिल के लिए चलता रहेगा, टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर स्ट्रेस है, यही आपका क्या होता है, फटीग लिमिट, इसी को क्या बोलते हैं, इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कर्व मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है, हमने पढ़ रखा है कि ये है आपका कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के लिए। कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस मतलब कोई भी कंपोनेंट है उसमें पहले आपने टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया, फिर टेंसाइल लगाया और फिर कंप्रेसिव लगाया, तो ये पर्टिकुलर साइकिल चलता है। एक साइकिल मतलब एक बार आप टेंसाइल लगा गए और फिर उसको हटा के कंप्रेसिव लगाया, तो ये दोनों को मिला के एक साइकिल होता है। तो ये होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, देखो, तो जो न्यूमेरिकल मिलेगा आपको वो इस पे मिलता है, ये वाले पे न्यूमेरिकल नहीं है अभी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल किसमें, इसमें जिसमें लोग एंड्योरेंस लिमिट मिल रही है। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू दे दिया, सपोज ये एसयूटी दे रखा है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, एंड्योरेंस लिमिट हो गया, ये दे रखा है। यहाँ पे आपकी साइकिल कितनी हो गई, 10⁻6 हो गई, और ये वाले के लिए जो साइकिल होगी यहाँ पे तो 3, इसको बढ़ा दो आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो दे रखी है, काट दो उसको, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। अब क्या होता है कि ना ये जो कर्व होती है ये कर्व रहती है, तो इस कर्व को हम लोग स्ट्रेट लाइन लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, log बेस 10 ले लिए, नंबर ऑफ साइकिल जो भी था, और यहाँ पे भी क्या करते हैं, log बेस 10 लेते हैं, ये दो काम करते हैं, ये हो गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ये देख लो, देखो आपका इसमें क्या होता है कि मान लो मैं 0 लिया, 0 साइकिल, कुछ समय बाद 10⁻3 साइकिल, कुछ समय के बाद 10⁻6 साइकिल, ऐसा आ रहा है। तो इसमें ये समझ लीजिए कि आपका 0 साइकिल मतलब कि आप एकदम एसयूटी पे लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका कर्व कुछ ऐसे गिरता गया कुछ गिरता गया कर्व ऐसा, और फिर यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन गया लगभग। तो ये जो कर्व है ये समझ लीजिए कि आप ये वाले पॉइंट में जब पहुँचते हो 10⁻3 में, तो उस समय ये वैल्यू एसयूटी से डेफिनेटली कम होगी। कितनी कम होगी, अप्रॉक्सीमेटली 0.9 एसयूटी होती है। तो ये वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। अब रही बात यहाँ से हम लोग कंसिडर क्यों करते हैं, क्योंकि ये 10⁻3 वाला तो बहुत कम साइकिल होता है, वेरी लेस साइकिल, तो इससे हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं रहता डिजाइन के लिए, तो ये वाला पार्ट को हम लोग इग्नोर करते हैं, और जो हमारा मेन काम चालू होता है वो यहाँ से चालू होता है, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन जो भी देगा आपको क्या करना है, क्वेश्चन में अगर एसयूटी दिया हुआ है, मान लो 600 दिया हुआ, तो आपको क्या निकालना है, 0.9 टाइम 600 करके ये निकाल लो,
और उसको यहाँ पे रखो, ठीक है। क्या था नंबर ऑफ साइकिल, क्या था 1000 था, मतलब log बेस 10 अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, और कुछ समय बाद स्ट्रेट लाइन आया और कुछ समय बाद ये ऐसा चला गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो आपका log बेस 10 इंड्योरेंस लिमिट रहेगा, राइट। तो ये ऐसा होता है। तो इस बीच में हम लोग का अब देख लो क्या होता है कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो वो न्यूमेरिकल में ये पूछेगा कि इन दोनों के बीच में स्ट्रेस की वैल्यू आनी है आपकी, कंफर्म है कोई स्ट्रेस की वैल्यू दोनों के बीच में आएगी, और उन्हीं के बीच में आने के कारण जो नंबर ऑफ साइकिल होगा यहाँ पे वट एवर एक्स वाई जेड, ये जो नंबर ऑफ साइकिल है इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ये एक्स साइकिल हो गया, तो ये नंबर ऑफ साइकिल की लिमिट हमेशा ये आएगी। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर आपका आंसर इसके बीच आ रहा है तो ये समझ लीजिए आपका आंसर सही हो सकता है, और इस लिमिट से बाहर आ रहा है नंबर ऑफ साइकिल तो ये समझ लीजिए आपने गलत सॉल्व किया। और वैसे ही सिग्मा की वैल्यू अगर देखी जाए तो सिग्मा की वैल्यू भी एक लिमिट के अंदर रहेगी, जैसे कि 0.9 ऑफ SUT से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, और सिग्मा की वैल्यू और किससे बड़ी रहेगी, इससे, इंड्योरेंस वाले से। तो ये भी एक लिमिट हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपको स्ट्रेट लाइन है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे ये देख लो एक बार और। सपोज यहाँ पे आपका ऐसा गया, ठीक है, तो सपोज ये वैल्यू है 1 सफिक्स, ये वैल्यू है 2 सफिक्स, अब बीच में वैल्यू निकालना है यहाँ पे, सपोज दिस इज योर एक्स वाई वैल्यू, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो देखो क्या होता है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे y माइनस कोई भी वैल्यू ले लो, y1 ले लो, y2 ले लो, कुछ भी ले लो, सपोज यहाँ पे 2 ले लिया, तो यहाँ पे नीचे भी आपको 2 लिखना है और एक वैल्यू यहाँ से y1 लेना है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला टर्म आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये काफ़ी ईजी भी है, ठीक है, जैसे x2 लिख दिए, यहाँ पे x1 आ गया, तो बस ये हो गया। तो इसमें आपको एक चीज़ गिवन रहेगा y या फिर x मतलब नंबर ऑफ साइकिल और y मतलब आपका स्ट्रेस की वैल्यू हो जाती है। तो कोई एक गिवन रहेगा और किसी एक को निकालना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो आप निकालिए, यू हैव 5 मिनट्स, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। सर एंटीलॉग 2.58। ओके 2.58 गुड। एंड तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकलेगी, log 10 बेस का वैल्यू आप बता रहे हैं सर 358.92। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको अगर देखो वैल्यू आपने सही निकाला है, ठीक है, क्या नाम है आपका, अजय राज शर्मा। ओके अजय जी, सही निकाला आपने। फिर आपको क्या करना है, केवल आपने निकाला वैल्यू 2.58, राइट। सो दिस वैल्यू इज करस्पॉन्डिंग टू द log बेस 10 सिग्मा, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड यू हैव टू डू वन थिंग ओनली, टेक द 10 वैल्यू, मीन्स यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पे 10 ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, सिग्मा बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू, और इसके बाद कितना आ जाता है वैल्यू, 358.92 समथिंग। हाँ ठीक है, 386, 359, 380, सर 359 नहीं 386.9। 386 आएगा, आप फिर से yes, चेक कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सर 386.63। ओके वेरी नाइस। तो 385 के अराउंड जो भी वैल्यू है, 385, 89 वहाँ तक आपका ठीक है वैल्यू, प्लस माइनस 1 या 2 वैल्यू चलता है इसमें, ठीक है, उससे उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने सॉल्व किया, अच्छी बात है ये, बट सभी सॉल्व करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप सभी को सीखना है और आपका जो पढ़ाई चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, इसमें केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं खुद के लिए, इसमें ना कोई बाहर से आपके ऊपर नज़र रख सकता, ना ही आपको ऊपर प्रेशर बना सकता कि पढ़ो या करो, ठीक है। क्लासरूम स्टडी अब हो नहीं रही है, तो आपको खुद ही करना है खुद के लिए, हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ही खुद के लिए
प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो काम है आपको पढ़ाना गाइड करना वो है, और आपका जो काम है वो अपना काम खुद करें। ठीक है, एफर्ट लगाएं, ऐसा नहीं कि केवल देखना सुनना हो गया, आपको इन्वॉल्व भी होना है चीज़ों में। ठीक है, सो अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में, या उस कर्व में, एसएन कर्व में, फटीग कर्व में। इसमें तो आई थिंक कई लोगों ने ज्वाइन करके छोड़ ही दिया मोबाइल को, रेंडम नाम लेने से तो आ ही नहीं रहे सामने। अनिमेश श्रीवास्तव, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, you are there. खुशबू, खुशबू कुशवाहा, कृष्णा, Yes, sir. okay, you are there. Richa, Yes, sir. Yes, sir. okay. So Richa, do you have any problem in this numerical? कोई प्रॉब्लम है? But actually, I have joined late, so I didn't understand the fatigue code. आपने लेट ज्वाइन किया, लेकिन जो चीज़ें चल रही वो प्रीवियस लेक्चर की ही चल रही हैं अभी तक। जो न्यूमेरिकल मैंने एक यूट्यूब में डाला था सॉल्व करके, उसको भी आई थिंक बहुत कम लोगों ने देखा, तो आप देखेंगे तभी हो पाएगा ऐसे। ये तो मेरा काम है पढ़ाने का, मैं तो पढ़ाते रहूँगा, लेकिन मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा अगर आप लोग ही उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो। ठीक है, तो इन्वॉल्व होइए थोड़ा, आप ही का बेनिफिट है इसमें। एंड उत्कर्ष तिवारी, आर यू देयर? No. So some people are listening the lecture and many है are सर, not. यहीं पे है सर। यहीं पे हो? आंसर आया तुम्हारा? नहीं सर, नहीं आया है। अरे तो लाइए, कैसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश करेंगे तभी तो आंसर आएगा, बिना कोशिश किए तो आएगा नहीं। ठीक है, तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो फिर से पूछ लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आप फिलहाल एक न्यूमेरिकल में ही पूरा समय चला गया। कॉर्पोरेट करते तो ये 5 से 10 मिनट का काम था, 45 मिनट चले गए इसके पीछे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, लेट्स सी दी नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस इज द टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द, यू कैन से फर्स्ट हाफ ऑफ योर सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट हाफ है उसका लास्ट टॉपिक है फॉर्मिंग। ठीक है, तो जो फॉर्मिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहली बात ये देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मिंग का मतलब होता है बनाना, मतलब मेटल का शेप चेंज करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, शेप चेंज करते हैं। अब शेप आप कैसे चेंज कर सकते हो, उसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि होता है फोर्जिंग, फोर्जिंग इज अ प्रोसेस, रोलिंग इज आल्सो अ प्रोसेस। ये सब फॉर्मिंग के प्रोसेस हैं। फोर्जिंग हो गया, रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, और भी काफ़ी हो सकते हैं, बट दीज आर दी कॉमन फॉर्मिंग टेक्निक्स। तो फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग ऑपरेशन में आप लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप चीज़ों को उसके यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस पे लोड लगा रहे हो, लेकिन उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम लगा रहे हो, तब वो जाके चेंज कर लेगा शेप। जैसे कि क्या पता अपने को, जैसे हमने पढ़ रखा है कि जो अपना टेंसाइल टेस्ट होता था उसमें जो आपको कर्व आता था कुछ ऐसा था, लाइक दिस, अपर देन लोअर, आफ्टर सम पॉइंट यू गॉट दिस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड सम फ्रैक्चर वैल्यू, राइट। तो ये देखिए, जो ये वाला जोन है, सपोज करो ये स्ट्रेस है और ये आपका स्ट्रेन है। ठीक है, ये आप सभी को पता है, ये तो आपके 11th-12th में भी होगा। तो इसमें क्या होता है, ये लीनियर जोन है, और ये जो जोन होता है स्टार्टिंग वाला, ये आपका होता है इलास्टिक।
इलास्टिक का मतलब आपने लोड लगाया, लोड को हटा दिए तो ये वापस इसी रास्ते से आ जाएगा। लोड लगाओगे तो ऐसे जाएगा, लोड हटा दिए तो वापस आ गया इनिशियल पोजीशन में। नो डिफॉर्मेशन, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब अगर आप ये जो यील्ड पॉइंट है इससे ऊपर लोड लगा दिए यहाँ पे कहीं, और उसके बाद ये हो गया आपका अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है, और इसके बीच में मतलब कहीं यहाँ पे लोड लगा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब आपने लोड लगाया और उसके बाद छोड़ दिया तो ये इनिशियल पोजीशन में नहीं पहुंच पाता, ये फॉलो करता है कुछ ऐसा पाथ। तो ये जो आपका होता है ये वाला वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या आता है, दिस इज योर परमानेंट डिफॉर्मेशन, और इसी को हम लोग बोल देते हैं दिस इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब ये रीजन में अगर हम लोग आते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ये रीजन में। इलास्टिक रीजन से बाद में जो भी आएगा वो आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन आ जाता है। तो आपका फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम लोग जो लोड लगाते हैं मटेरियल पे उसके यील्ड पॉइंट से लोड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जो हम लोग लोड एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, वो लोड की जो वैल्यू रहेगी वो यील्ड पॉइंट से ज़्यादा रहेगा, देखिए, और उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ से, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम रहेगा। तो ये आपका क्या होता है, ऐसा लोड लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, डिफॉर्म होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा मटेरियल, और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अब ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मिंग। तो क्या है, फॉर्मिंग ऑपरेशन आर दोज इन विच द शेप ऑफ मटेरियल पीस इज चेंज बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इसमें जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो आपका जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो उसका शेप चेंज होता है केवल, ठीक है। एक प्रोसेस होता है मेटल कटिंग का। तो मेटल कटिंग में नाम क्या रहा है, कटिंग, इसमें कटेगा मतलब इसमें वॉल्यूम जो रहेगा ऑब्जेक्ट का वो कम हो जाए। सपोज करो कि ऐसा शेप है, इसको आप काट के ऐसा बना दिए तो ये जो मटेरियल हट गया अगल बगल का, तो मेटल कटिंग है। वो क्या होगा, फैब्रिकेशन दिखती है। ये भी एक फैब्रिकेशन प्रोसेस, मतलब फैब्रिकेशन मतलब बनाने का प्रोसेस। आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट कई तरीके से बना सकते हो, तो एक तरीका फॉर्मिंग होता है और एक होता है मेटल कटिंग मतलब। तो इसमें क्या है, कटेगा मतलब, कटिंग मतलब काटना, मेटल को काट काट के बनाना। जैसे आपने लेथ में एक्सपेरिमेंट किया होगा फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप में, तो वहाँ पे लेथ में आपने डाल दिया मटेरियल को और उसमें टूल रहता है, टूल और वर्क पीस के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो टूल वर्क पीस से मटेरियल को चिप्स के फॉर्म में बाहर निकालता है, राइट। तो वो कटिंग प्रोसेस होता है, उसमें काटता है। लेकिन फॉर्मिंग क्या होता है, उसमें हम लोग कोई मटेरियल रिमूवल नहीं करेंगे, केवल उसका शेप चेंज करेंगे। तो इसमें क्या आता है देख लीजिए, एग्जांपल तो बता दिए हैं, फोर्जिंग क्या है, रोलिंग क्या है, एक्सट्रूजन और ड्राइंग। तो ये होते क्या है ये देख लो पहले। यहाँ पे आपके पास 4 डायग्राम है। फर्स्ट वन इज फोर्जिंग। फोर्जिंग का मतलब ये है, देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं फोर्जिंग में। जैसे ये डाई है, दिस इज अपर डाई, दिस इज लोअर डाई। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, आपने मटेरियल को यहाँ रख दिया, ठीक है, ये आपका मटेरियल है। अब इसमें क्या है, डाई लगा दिया और आपने इसको लोड लगाया ऊपर से नीचे से। तो यहाँ पे देखिए आपने फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाने से क्या होगा, देखो ये मटेरियल जहाँ पे स्पेस मिलेगा वहाँ मूव कर जाएगा। तो ये इस जो डाई का शेप है वही शेप को ले लेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज क्या है, 0 है, ठीक है, केवल शेप चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका फोर्जिंग होता है प्रोसेस। अब दूसरा क्या होता है, रोलिंग। देख लो क्या होता है रोलिंग। ये है, इसमें 2 रोलर लगे होते हैं और रोलर का जो बीच का दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये वर्क पीस के डिस्टेंस से कम होता है। ये देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये इसमें डिफॉर्म हो जाता है मोशन करने पे। तो ये हो गया रोलिंग। तो इसमें भी क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, और वैल्यू क्या है, वॉल्यूम चेंज का 0। अब एक होता है एक्सट्रूजन। थर्ड प्रोसेस आपका एक्सट्रूजन है। एक्सट्रूजन में क्या हो रहा है, आपने क्या किया, एक कंटेनर है, ये पूरा कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे डाई लगा है, ये ओपनिंग है, दिस इज ओपनिंग। ये क्या आपका ओपनिंग है, मतलब हर तरफ से ये पैक है और केवल यहाँ पे खुला है सामने में, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे आपने जब पीछे से क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो जो भी मटेरियल होगा वो उसके बाद रास्ता कहाँ जाने के लिए, केवल इस रास्ते से होकर गुजरेगा। और यहाँ पे आपने डाई लगा के जो शेप देना वो शेप दे के बाहर निकाल दो मटेरियल को। तो इसमें क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है, इतना बड़ा वॉल्यूम था,
वो वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन इसका जो पहले क्रॉस सेक्शन क्या था, काफ़ी ज़्यादा था, और बाद में जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है मटेरियल का वो क्या हो रहा है, काफ़ी कम है और उसकी लंबाई ज़्यादा मिल रही मटेरियल की, राइट। तो ये हो गया एक्सट्रूजन प्रोसेस। अब आता है ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग मतलब ये होता है कि आपको डाई रखा है, ये भी मतलब देखिए क्या करते हैं, डाई का जो डिस्टेंस है, ये देखिए डाई के बीच में ये कम डिस्टेंस और यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, इसकी डायमीटर ज़्यादा है। तो पहले हमने एक इसका सिर घुसाया, मतलब जो भी है एक एंड घुसा लिया वायर का, और उसके वायर को यहाँ से पकड़ के हम लोग खींच रहे हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया से कोई भी मटेरियल जा रहा है तो उसके डायमीटर कम होने लग जाती है। तो ये होता है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या आ जाता है और चीज़, वायर ड्राइंग। तो वायर ड्राइंग में क्या करेंगे, अपने पास पहले कोई ये थिकनेस का सपोज करो कॉपर का मटेरियल, तो लोग क्या करेंगे, इसको पहले स्टार्ट में जिसका एक एंड से उसको हथौड़े से या फिर हैमर जो भी बोल लो उससे, या फिर एक होता है ऑटोमेटिक मशीन भी होता है, इसका क्रॉस सेक्शन शुरुआत में कम करेंगे। मतलब एक रॉड था, उसका क्रॉस सेक्शन आपको कम करना, तो रॉड कैसे बन गया, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये शुरुआत में जो एंड से इसका काफ़ी कम क्रॉस सेक्शन का, इसको हम लोग क्या करेंगे, डाई के बीच से घुसा लेंगे और फिर टेंसाइल फोर्स से खींच लेंगे, तो ये वायर में बदल जाएगा। जो ज़्यादा डायमीटर था वो बाद में डाई से निकलने के बाद पतला हो जाएगा, कम डायमीटर में आ जाएगा। तो ये ड्राइंग प्रोसेस है। सो दीज आर सम फॉर्मिंग प्रोसेसेस, एग्जांपल ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेसेस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, डीफॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस और स्ट्रेस। इसमें स्ट्रेस से आप एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही, द मैग्नीट्यूड ऑफ विच मस्ट एक्सीड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका जो मैग्नीट्यूड लग रहा है स्ट्रेस का, फोर्स का, वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा लगना चाहिए। मोस्ट मेटेलिक मटेरियल्स आर स्पेशली amenable to this procedure, being at least moderately ductile and capable of some permanent deformation without cracking or fracture। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो मोस्ट मेटेलिक मटेरियल है, मतलब ज़्यादातर आपके जो मटेरियल क्या होते हैं, अनेबल टू दिस प्रोसीजर, मतलब ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस शो करते हैं। कौन सा, कि वो थोड़ी सी डक्टिलिटी शो करेंगे, थोड़ा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेंगे बिफोर क्रैकिंग। तो आपका जो मैक्सिमम मटेरियल होते हैं वो सब शो कर लेते हैं और उनमें ये फॉर्मिंग प्रोसेस कर सकते हैं। अब एक टर्म आता है कोल्ड फॉर्मिंग, कोल्ड वर्किंग, और एक टर्म आता है आपका हॉट वर्किंग, ठीक है। तो ये देख लेते क्या होता है। आपका जो फॉर्मिंग ऑपरेशन है ना, जैसे कि आपका फॉर्मिंग ऑपरेशन क्या क्या था, तो जैसे कि आपका ये फॉर्मिंग ऑपरेशन, जैसे फोर्जिंग हो गया, रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब क्या है, ये सब फॉर्मिंग ऑपरेशन है। तो ये फॉर्मिंग ऑपरेशन दो टाइप के हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, एक एलिवेटेड टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट वर्किंग, और एक हो सकता है कोल्ड वर्किंग। अब ये जो टर्म है ये समझना है कि हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग क्या होता है। तो अपने को पता है हॉट मतलब हाई टेम्परेचर पे, जब आप किसी मटेरियल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अराउंड 0.5 नहीं, आप किसी मटेरियल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव टेम्परेचर पे अगर काम करते हो तो वो क्या हो जाएगा, हॉट वर्किंग हो जाएगा। और अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ये हुआ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो क्या होता है कि आपका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे कि आप आयरन ले लीजिए उसका अलग होगा, और कॉपर ले लीजिए वो अलग होगा। और ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है अराउंड कितना होता है, ये होता है अराउंड 0.3 to 0.5 टाइम ऑफ TM। मतलब TM क्या होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो वैल्यू लेनी है उसको किसको लेना है, एब्सोल्यूट स्केल में लेना है, ठीक है। सो एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर के मतलब केल्विन में लेना है।
तो उसमें क्या होता है, आपका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो 0.3 से 0.5 टाइम ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल होता है, जहाँ पे आपको जो टेम्परेचर स्केल है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मतलब केल्विन में होनी चाहिए। और जो रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब फिर से क्रिस्टलाइजेशन होना, मतलब वही अगर आपने मटेरियल ले रखा है तो उसके अंदर कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो अगर इस मटेरियल को मैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर रखता हूँ तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अंदर में कुछ डिफॉर्म हुआ होगा ड्यू टू सम वर्क, वो अपने आप को थोड़ा रीअरेंज करेगा अगर इस मटेरियल को मैं इस टेम्परेचर के ऊपर रखता हूँ तो, ठीक है। तो ये हो जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो इसमें पॉइंट क्या है देख लेते हैं पहले। सो सी द पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो पहली बात क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है, पहले उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्या बोलता है, द मिनिमम टेम्परेचर द कंप्लीट, 1 मिनट। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट which the completed recrystallization of cold worked metal occurs within a specified period of approximately 1 hour। मतलब ये होता है कि आपने कोई मटेरियल लिया, ठीक है, इसमें आपने कोल्ड वर्क किया। कोल्ड वर्क किया मतलब इसके ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाया, इसका डिफॉर्मेशन किया। सपोज ये ऐसा मटेरियल था, मैंने इसे कंप्रेस कर दिया और ऐसा शेप लिया, ये आ गया शेप ऐसा, तो इसका शेप चेंज हो गया। और मान लो मैंने इसका जो इस पे जो फोर्स लगाया था, वो जो फोर्स था वो इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जो ये वाला टेम्परेचर है, मैंने उससे नीचे किया था, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करें। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैंने कोल्ड वर्क किया हुआ था, तो डेफिनेटली क्या होगा, कोई भी आपने फोर्स लगाया, कोल्ड वर्क किया, तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो कुछ ना कुछ उसमें क्या बोलते हैं, उसका अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा। मतलब ये है कि उसको जैसे कि आपने क्या था, यहाँ पे सपोज ग्रेन साइज जैसा था, जो आपने कंप्रेस कर दिया तो ग्रेन साइज कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ग्रेन साइज। तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा स्ट्रक्चर में जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो या वर्क करते हो। तो क्या करेंगे कि इसमें हमने क्या किया, इसको हमने एक टेम्परेचर पे रखा। वो टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा कब, जब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होके अपना पुराने स्ट्रक्चर के आसपास आ जाए, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे किसी कोल्ड वर्क बॉडी को रखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में, तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, मतलब उसका जो क्रिस्टल है वो फिर से न्यूली फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो काम हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, एक प्रकार से जो अंदर में स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा कुछ ना कुछ, वो फ्री हो जाएगा। जो मटेरियल होगा आपका फ्री फ्रॉम द इंटरनल स्ट्रेसेस हो जाएगा, थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क अ मटेरियल हैज ऑलरेडी रिसीव्ड। अब देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने की बात है। द हायर द कोल्ड वर्क द लोअर वुड बी द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। मतलब ये है कि आपका जितना हायर कोल्ड वर्क करोगे उतने ही कम आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है। जैसे कि आपने क्या लिखा कि रिक्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ये होता है हल्का फुल्का चेंज। मतलब इसकी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ चेंज होती है Tm, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है, मान लो कोई मटेरियल है अपने पास, दिस इज आवर मटेरियल ए। अगर इस मटेरियल पे मैंने ज़्यादा कोल्ड वर्क किया है, मतलब इसमें एक्सटेंसिवली कोल्ड वर्क किया, इसका शेप ज़्यादा चेंज किया, सब इसको ऐसे बना दिया, तो इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाएगा। ज़्यादा कोल्ड वर्क करोगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो गया। मान लो कोई भी चीज़ को आपने डिफॉर्म करके रखा है, तो वो क्या करना चाहेगा, जल्दी से जल्दी रिकवर होना चाहेगा, ठीक है। जैसे जो होती रिकवरी होती है मटेरियल की, वो रिकवरी होनी चालू होगी, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन आपने काफ़ी ज़्यादा कर रखा है, इसलिए रिकवरी होने के चांस भी इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कम टेम्परेचर पे ही इसमें रिकवरी होने लग जाएगी
और उस टेम्परेचर में जिसमें रिकवरी होती है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हो जाएगा, उसमें आपका जो क्रिस्टल वो रिफाइन होंगे फिर से। ठीक है, तो कोल्ड वर्क अगर ज़्यादा कर दिए किसी मटेरियल पे तो उसके अंदर जो आपने क्या है डिफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही कर दिया तो उसमें रिकवरी भी जल्दी होगी, कम टेम्परेचर पे होने लग जाएगी, तो इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है, व्हेन डिफॉर्मेशन इज अचीव्ड एट अ टेम्परेचर अबव एट विच रिक्रिस्टलाइजेशन अकर्स। अब सिंपल सी बात है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपको अगर समझ आता है तो उसके अगर ऊपर काम करते हो तो वो होता है हॉट वर्क, और अगर नीचे काम करते हो तो कोल्ड वर्क। ठीक है, तो हॉट वर्क इज when you are working above the recrystallization temperature and when you are working below the recrystallization temperature it is cold work। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, विथ मोस्ट ऑफ द फॉर्मिंग टेक्निक्स बोथ कोल्ड एंड द हॉट वर्किंग प्रोसीजर आर पॉसिबल। मतलब ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो फॉर्मिंग टेक्निक्स है, जैसे टेक्निक्स क्या हो गया, क्या था टेक्निक्स आपका, ये सबसे टेक्निक रोलिंग हो गया आपका, ठीक है, फोर्जिंग हो गया, रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, ड्राइंग हो गया। तो यही बोल रहा है कि ये जो टेक्निक है इसमें हम लोग हॉट वर्क कोल्ड वर्क दोनों कर सकते हैं। तो इसके बाद जो चीज़ आती है नेक्स्ट वो सिंपली है, काफ़ी सिंपल है। इसमें टॉपिक में क्या आता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्क। लेट्स सी द एडवांटेज फर्स्ट। तो एडवांटेज में क्या देखना है कि देख लीजिए, बेटर एक्यूरेसी है, क्लोज टॉलरेंस है। तो आपका जो कोल्ड वर्क होता है उसमें आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो टॉलरेंस रहती है काफ़ी अच्छी रहती है, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है, और इसका जो सरफेस फिनिश होता है वो अच्छा होता है। सरफेस फिनिश मतलब जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर कोई स्केलिंग नहीं है, क्योंकि आप जब हॉट वर्क करते हो किसी ऑब्जेक्ट में, मतलब ये समझ लो कि चीज़ को गर्म किया, तो जब कोई भी चीज़ को आपने गर्म कर दिया तो इसका मतलब क्या होना, हाई टेम्परेचर पहुंच गया, और हाई टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि जो मेटल होगा वो हाई टेम्परेचर में, कोई भी मेटल है वो हाई टेम्परेचर में क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, उसका मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो मेटल ऑक्साइड वाला प्रॉब्लम आता है वो किस में आएगा, हॉट वर्किंग में। कोल्ड वर्किंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर अगर मेटल ऑक्साइड बन जाएगा तो उसकी जो टॉलरेंस मतलब उसकी जो डायमेंशन है वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया आपका, मेटल ऑक्साइड बन गया। जो मेटल नहीं है तो वो जो ऑक्साइड होगा वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है सरफेस पे। और हाई टेम्परेचर का आपको पता है कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसमें डिस्टॉर्शन होने की भी चांस ज़्यादा है मटीरियल में, इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए आपको जो कोल्ड वर्क होता है उसमें आपको एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी मिलती है, टॉलरेंस काफ़ी अच्छा होता है। अब टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब ये है किसी भी आप डायमेंशन का बना रहे हो वो डायमेंशन में आप कितना फिट हो, ठीक है, वो होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब ये समझ लीजिए कि सपोज यू आर एक्सपेक्टिंग सम प्रोडक्ट बिटवीन 10 सपोज आपको क्या बनाना है, 10.59 mm का एक डायमीटर चाहिए, 10.59 का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम एक्यूरेट इतना बना लो। तो आप क्या बोलोगे मैन्युफैक्चरर को कि मुझे इतना का चाहिए, मैन्युफैक्चरर आपको बोलेगा कि इसका एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा बट वी कैन जस्ट प्रोवाइड मी सम टॉलरेंस फॉर दिस प्रोडक्ट। लाइक वो बोल सकता है कि मुझे इतना दे दो, कि इस बीच में अगर कोई प्रोडक्ट बनता तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये होता है जो हमने टॉलरेंस दे रखा है। तो टॉलरेंस कितना दिया यहाँ पे, इतना एम का, तो ये होता है टॉलरेंस। तो ये क्लोज टॉलरेंस हो सकता है इसमें। अब क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीजेज दी स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीजेज दी स्ट्रेंथ एंड द हार्डनिंग। तो जब आप भी कोल्ड वर्क करते हो किसी भी चीज़ में तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। ये चीज़ हमने पढ़ रखा है उसमें कि ये आपका करवाया अपर लिड लोअर लिड फिर ऐसे हुआ। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेंथ में ये स्ट्रेन हार्डनिंग है, ठीक है, ठीक है, ये सिग्मा हो गया, एप्सिलॉन हो गया। तो ये जो वैल्यू बढ़ रही है ना, यहाँ से अपर यील्ड पॉइंट से आगे बढ़ने पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ये आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है कोल्ड वर्क करने पे। तो ये बोल रहा है स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ता है। अब क्या बोल रहा है, जो ग्रेन फ्लो है ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन कैन कॉज डिजायरेबल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इन द प्रोडक्ट। तो ग्रेन फ्लो आपका डिजायरेबल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि देख लो कैसे, आपने क्या किया, रोलिंग किया,
ठीक है, तो रोलिंग से ऐसा प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे मान लो आपका जो ग्रेन साइज था ऐसे था, और रोलिंग के बाद ग्रेन की साइज ऐसे हो गई। तो ये देखिए जो मटेरियल होगी इसकी ग्रेन साइज क्या हो रही है, काफ़ी डायरेक्शनल है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका लोड लगने वाला है, सपोज करो एक रॉड है, ये आपने रॉड बनाया, इसमें इधर आपको एप्लीकेशन की आपका क्या बोलते हैं, दो कनेक्ट कर रहा है, तो इसमें लोड का डायरेक्शन ऐसे है, और उसी डायरेक्शन में आपको ग्रेन का भी डायरेक्शन है, दीज आर दी डायरेक्शन ऑफ योर ग्रेन। तो ये उसी डायरेक्शन में है, तो आपका स्ट्रेंथ अच्छा बढ़ा देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कोल्ड वर्क करने से आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अच्छी बढ़ जाती है। और एक और बात सिंपल सी कि इसमें हीट नहीं चाहिए, जब हीट नहीं चाहिए तो आपको अलग से हीटिंग इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ठीक। डिसएडवांटेज क्या है, इक्विपमेंट ऑफ हायर फोर्सेस एंड पावर रिक्वायर्ड। ये सिंपल सी बात है, अगर आप हॉट वर्किंग करते किसी भी चीज़ का, तो क्या होता है उसमें आपको, एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। सो वी आर एंडिंग द लेक्चर हियर। ओके सर। ठीक है, सो थैंक फॉर द लेक्चर, यू कैन लीव। थैंक यू सर। ओके।